अच्छे टॉपिक्स भी कवर हो गए हैं, डाउट्स क्लियर हो गए हैं, राइट? एंड देन AI RPA थ्रू इंटरनेट या कॉल किया या क्या गया? थ्रू AI सर्च करके, अच्छा, सर्च करके, लिस्टिंग्स को सर्च करके लीड जनरेट करी और उससे $100 मिलियन का सेल्स क्रिएट किया है। नो वे। यस, नई टर्म निकल के आई है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे कोर्सेज हैं यूडेमी पे और कोर्सेरा पे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये इसमें क्या है? बेसिकली एक कोर्स है छोटा सा जिसमें आपको AI के प्रॉम्प्ट्स किस तरीके, दैट्स इट। एंड आई नो फॉर सम ऑफ यू व्यूअर्स, कुछ आप लोगों में से एक्सपर्ट भी होंगे। हाँ, मनी ऑर्डर वाली बात तो बतानी है। मनी ऑर्डर वाली मतलब आज जहाँ पे इंडिया में UPI चल रहा है, लैंडलॉर्ड ने तेरे से मनी ऑर्डर मांग लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो We the Podcasters. This is our first episode and it's based on the buzzword, the main topic everyone is talking about today, AI, ChatGPT, and along with we're going to give you a little bit of difference of AI with ML, which is machine learning, and RPA. And I'm joined here with my friend, my dearest friend for more than 15 years, Deshdeep. So I would like to tell you a little bit about Desh. ये मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई है। अभी US से आया है एंड he's worked in Singapore, Dubai, South Africa, US. He's got a multinational experience and we love talking about all these topics together, so we just thought might as well record it, right? Welcome Desh, we have started the series. Let's go on with this. Absolutely, so thank you everyone, and a welcome from my side as well to We the Podcasters. And there are a lot of things which we're going to talk about, and हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा इसको इंग्लिश में करेंगे। हम लोग इसलिए इंग्लिश में करेंगे क्योंकि जो हमारी ऑडियंस की जो रीच है वो मिक्स है, राइट? वी वांट टू डू दिस इन इंग्लिश, वी वांट आल्सो डू दिस इन हिंदी, सो लेट्स डू इट इन इंग्लिश। Exactly. And and then what Prateek said, let's talk about it. But before we go to the topics, I just quickly want to introduce you, Prateek. And I will introduce you as well. तो 15 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, and we work together, of course. And there are a lot of common topics we always talk about, right? So Prateek comes from a very rich finance background. He's a CMA US, and then of course he owned a business. There are a lot of things which he has done, and then we will talk about that in future. There are many different topics which we're going to talk in different episodes of this series. So that's pretty much about Prateek. So welcome Prateek to your own show. And to your show as well. So this is something that we wanted to do for a very long time. हम लोग बहुत टाइम से ये करना चाहते थे, और इस टाइप की कॉन्वर्जेशन जो हम लोग करते थे घंटों बैठ के, पता ही नहीं चलता था कब 4 घंटे बीत जाते थे, और हम लोग एक कॉमन टॉपिक पे बात करते थे जिसके बारे में हम लोगों को दोनों को बहुत क्यूरियोसिटी है। So before we jump into the topic, let me also quickly introduce Desh. He is a creditologist with such a rich experience. As I said, इतनी सारी countries में काम करा हुआ है, and maybe in future, if you guys want to know how his experience was working in the US versus Dubai versus Singapore, we can cover one whole maybe episode about it. Jo, your experience was because we have talked about it so much, right? Over Zoom calls and over so many video calls, that how your experience was. I still remember when you were telling me about the money order thing in US. Exactly. That I cannot forget. So वो सारी चीजें, plus your rich experience, being a creditologist and working into so many MNC companies. So that is amazing, and I learned so much from you every day, man. No, thank you so much for having me. Really appreciate that. On your own show. Okay. So let's start off. So our episode today is called how AI, or let's say ChatGPT, which we'll cover mostly today, is changing our work lives, which is actually beyond the hype is what we are trying to cover this. We both have worked so much on ChatGPT. I still remember the day जब तुझे याद है वो when I showed you ChatGPT the first time when I heard the news about ChatGPT. I think it was November 2022 when it was released. Exactly. I think first week of December. मैंने तो सुना भी नहीं था उसके बारे में, मेरे को पता ही नहीं था कि क्या चीज है। And then when you introduced me, I was like, अरे भाई ये क्या चीज है। और हम लोग वीडियो कॉल पे थे, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी थी, and I showed you कि ये क्या कर रहा है, देख एक बारी कि किस तरीके से, and it was like magic, like किसी बच्चे को अचानक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी दिखा दिया, है ना? क्या अमेजिंग लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था वो हमारा। एंड इट इज स्टिल फॉर लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, दोज हु फाइंड आउट कि ऐसा कोई चीज है, LLM कोई है चीज, राइट? व्हिच वी विल टॉक अबाउट दिस इन आवर एपिसोड आल्सो, राइट? सो
और एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो शायद सालों से डेवलप हो रही थी और अचानक से रिलीज कर दी गई, एंड देन ऑब्वियसली इट वाज मेकिंग मिस्टेक्स व्हिच यू रिमेंबर आई वाज टेलिंग यू कि इनिशियल लेवल्स में चैट जीपीटी को हम लोग एक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी पूछ रहे तो वो एक मिस्टेक कर रहा है, एंड देन लेटर ऑन हम लोग वी सॉ दैट इट लर्नड फ्रॉम इट्स responses and the inputs that we are giving it. तो एक टाइम के बाद वही सेम क्वेश्चन मैंने उससे दोबारा पूछा तो उसने सही जवाब दिया. तो एक इस तरीके की जो लर्निंग है ये आज तक हमने देखी नहीं थी, इस तरीके का क्विक टर्न अराउंड टाइम. We have not seen that ever before. अभी अगर आज मेरे को सर्च करना है तो ChatGPT is doing searches as well. तो अगर आज मेरे को सर्च करना है, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो मेरे को एक प्रॉपर सर्च मिलता है, जनरल व्यू मिलता है कि भाई ये इतने सारी चीजें हैं, and then you have to figure it out on your own, and then you have to find out what exactly you're looking for, right? After going through probably 10 pages or I don't know how many pages, right? Depending on what your search is. Exactly. Yeah. लेकिन अभी मैं ChatGPT पे वो सेम सर्च कर दूं तो उसको वो जानता है मेरे बारे में. अगर तुझे याद हो तो मैंने एक बार देखो ये भी दिखाया था कि वो कितना जानता है मुझे. अगर आप लोग ChatGPT यूज करते हो रेगुलरली, सिर्फ एक ये प्रॉम्प्ट डाल के देखो, कैन यू टेल मी अबाउट माई सेल्फ, तो ये चीज अगर आप डाल के देखोगे, आप देखो क्या क्या जानता है वो आपके बारे में. और it can be scary also sometimes because it probably knows you more than you do. Correct. Or you can recall about yourself, right? Number of things which you know about. और I remember कि जब हम लोग last time देख रहे थे, right? कि tell me about myself, and it told you कि you like to have coffee in the morning, and this is the type of coffee you want to have in the morning. And I was really surprised कि भाई इसको कॉफी के बारे में पता है. वो कभी मैंने सर्च किया होगा ना यार उस कॉफी के बारे में और कुछ मैंने किया होगा तो उसको इतने मतलब एक प्रोफाइल आपकी बेसिकली क्रिएट हो जाती है वहां पे चैट जीपीटी पे, और आपकी सारी सर्चेस को वो लर्न कर रहा है. इट्स लाइक योर मिनी असिस्टेंट. एक इंटर्न है, एक बहुत ही स्मार्ट इंटर्न है आपका, और वो आपकी सर्चेस से और आपके प्रॉम्प्ट से आपको लर्न कर रहा है. और आप इतना सा पूछो उसको कि टेल मी अबाउट माई सेल्फ, आपकी पूरी जन्म कुंडली दे देगा वो, जो आपने सर्च किया होगा. जैसे मेरा उसने बता दिया CMA US हो आप, और आपका ये एक्सपीरियंस है, ये आपकी हॉबीज हैं, ये आपके इंटरेस्ट हैं. एग्जैक्टली. तो ध्यान से सर्च करना आप क्या सर्च कर रहे हो ChatGPT पे, क्योंकि वो पढ़ रहा है और वो देख रहा है. Exactly. First thing which we want to talk about is I mean, and there are a number of things which we are talking about in today's episode, right? We want to talk about AI, we want to talk about RPA, we want to talk about machine learning, and then हम लोग इसको थोड़ा बिल्कुल मेलो, right? टेक्निकल नहीं जाते हैं, क्योंकि जब टेक्निकल जाते हैं तो फिर इट बिकम्स टू कॉम्प्लिकेटेड, राइट? तो लेट्स डू अ वेरी हाई लेवल की भाई आपका AI क्या है, राइट? आपका मशीन लर्निंग क्या है, एंड देन RPA के बारे में थोड़ा बताते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी कोई बोलता है कि RPA तो AI ही है, मशीन लर्निंग भी AI है, राइट? ऑटोमेशन को AI समझ लेते हैं, ऑटोमेशन को AI समझ लेते हैं, जबकि RPA टोटली डिफरेंट चीज है. हाँ ठीक है, देयर आर फ्यू पार्ट्स कनेक्टेड टू AI, मशीन लर्निंग से कनेक्टेड है, सब सारे जो तीनों टॉपिक है कनेक्टेड है. लेकिन हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री व्हेन समबडी इज स्पीकिंग अबाउट, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो हम लोग उस पर बात करते हैं उसके बाद. और उसमें बेसिकली क्या है कि ये साथ में इतने अच्छे से काम करते हैं. और जैसे अगर आप AI को RPA के साथ मिला के एक पर्टिकुलर एक मॉडल बना सकते हो, एक क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप ऑटोमेशन कर रहे हो एक साइड पे, और उसकी लर्निंग को लेके आप AI के थ्रू आप आगे बॉट्स बना सकते हो, बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो. तो बॉट्स तो ऑडियंस के लिए बॉट्स क्या रोबोट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, या क्या किसके बारे में? नहीं, तो बेसिकली अगर आप अच्छा इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग ले लेते हैं और कुछ यूज केसेस को ले लेते हैं. पहले तो AI इज एन LLM, आपको सबको पता ही होगा. LLM क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसमें कि एक पर्टिकुलर एरिया से आप इनपुट से आप लर्न करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हो. AI का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस RPA के साथ और ML के साथ यही है कि वो डिसीजंस ले सकता है और वो चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है लर्न करके. तो ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंशिएट करती हैं इन तीन मॉडल्स को आपस में. और कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट बॉट्स और कस्टमर सर्विस में फॉर एग्जांपल AI एक रेवोल्यूशन ला रहा है. ओके, आज की तारीख में आपको अगर अपने किसी टेलीफोन प्रोवाइडर की कस्टमर सर्विस को रीच करना था या फिर आपको चैट करना है, तो एक ह्यूमन इंटरेक्शन आप वेट करते थे. यूज्ड टू वेट फॉर अ ह्यूमन इंटरेक्शन कि चैट पे आप कर रहे हो, और फोन पे तो चलो फिर भी आप बता सकते हो, लेकिन चैट पे इतना एडवांस हो गया है AI, इट इज यू विल फील दैट यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू अ ह्यूमन, बिकॉज उसके इंटरेक्शंस को ह्यूमनाइज कर दिया है, उसके रिस्पॉन्सेज को ह्यूमनाइज कर दिया है. और इट्स लर्निंग फ्रॉम सो इमेजिन सो मेनी इंटरेक्शंस आर हैपनिंग एवरी डे, एंड एवरी वन ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस को वो
इम्प्रूव कर रहा है और वो जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, यू विल फील लिटरली कि किसी बंदे से मैं बात कर रहा हूँ और वो मेरे रिस्पॉन्सेस को दे रहा है। आज की तारीख में आप कोई भी मोस्टली मैक्सिमम कंपनीज ने ये अडॉप्ट कर लिया और ये कितना कॉस्ट सेविंग है, एग्जैक्टली मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट सेविंग है ये, राइट। और वहां पे आप देख रहे हो कि आप एक बॉट बनाया और आज की तारीख में ये इतना इजी हो गया। एक्चुअली ये चैट जीपीटी के आने से पहले से भी बन रहे थे, बट चैट जीपीटी के आने के बाद यू एंड मी कैन अडॉप्ट चैट जीपीटी एंड मेक अ बॉट। एग्जैक्टली यू एंड मी कैन डू दैट। तो अभी हम मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी होने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली एंड यू हैव मेड मेनी एप्लीकेशंस, राइट? आई रिमेंबर यू वर टेलिंग मी कि फॉर योर किड्स यू हैव मेड सम एप्लीकेशंस, सो it's been super easy. And of course it takes time. You don't need to be a coder to learn all of that. You just need to know what you need what you need from it, right? So मुझे ना बचपन से ना कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो कोडिंग एक टाइम पे मैं ट्राई भी कर रहा था लर्न करने का, एंड देन ऑब्वियसली आफ्टर स्कूल लाइफ एंड ऑल दैट वो सब फेड अवे हो गया थोड़ा सा। बट एक मेरे को इंटरेस्ट था कि यार कोडिंग से यू कैन क्रिएट सो मेनी थिंग्स, स्पेशली गेम्स क्रिएट होती थी जिस तरीके से C++ पे और उस तरीके से वो मैंने बहुत मजा आता था मुझे देख के। और दे वर सिंपल गेम्स और मैंने एक छोटी बहुत बचपन में करी भी थी क्रिएट गेम्स, लेकिन उस पे जो एफर्ट लगता था कोड करने के लिए, क्योंकि thousands of lines of code है, right? And you're literally typing it out. और आज की तारीख में इतना easy हो गया है और मैं literally ये करता हूँ, on a weekend मैं अपने बच्चे के साथ बैठता हूँ और उसको पूछता हूँ मेरे को देखो कौन सी गेम खेलनी है, what kind of game do you want to play? तो एक दिन मैंने उसके लिए एक प्रोटोटाइप फ्लैपी बर्ड का बनाया। अच्छा, हाँ, तो फ्लैपी बर्ड गेम अभी वायरल हुई थी पीछे, याद होगा। तो बेसिकली कुछ नहीं है वो, वेरी इजी गेम टू प्ले। उसको बस मेरे को प्रॉम्प्ट्स देने हैं चैट जीपीटी को, मेक अ गेम लाइक फ्लैपी बर्ड, चेंज दिस, मेक अ बर्ड लाइक दिस, मेक द ऑब्स्टिकल्स लाइक दिस, इतना गैप रखना है, इतना बैकग्राउंड रखना है, ये रखना है। उसने पूरा कोड दे दिया। वो कोड को आप कॉपी करके पेस्ट मारो, HTML में डालो और गेम चल रही है। That's it. और अगर आपको थोड़ा और एडवांस जाना है, थोड़ा और आपको अगर उसको बैकग्राउंड और पिक्चर्स डालनी है, तो 3 तरीके की फाइल्स आपको क्रिएट करनी है। एक CSS फाइल क्रिएट करनी है, एक स्टाइल फाइल क्रिएट करनी है, और एक आपको जावा जो JS फाइल क्रिएट करनी है। HTML हो गई, CSS हो गई, JS फाइल हो गई। बहुत इजी है। आई मीन मैं उसकी एक इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आप अगर चैट जीपीटी उसके लिए हम लोग एक अलग एपिसोड में बात करेंगे, जैसा हमने बताया। वी आर ओनली गोइंग टू बी टॉकिंग हाई लेवल। आई नो कि थोड़ा भी टेक्निकल हो गया था, but that's okay. I mean, you guys should know about this. लेकिन ये बहुत इजी है। अगर आप भी करोगे ना, आप चैट जीपीटी पे जाओ, लिख दो कि मुझे ये मारियो टाइप की गेम बनानी है, ये बनानी है, और वो आपको पूरा कोड दे देगा। उस कोड को आप नोटपैड में पेस्ट करो और .html के नाम से सेव कर दो और उसको प्ले करोगे, आपके ब्राउजर में गेम चल जाएगी। वेरी सिंपल। अगर आपको गेम बनानी है, एक गेम बनानी है आपको छोटी सी, ये बन जाएगी। पिंग पोंग टाइप गेम बनानी है, पिंग पोंग टाइप बन जाएगी। बच्चों को दिखाओगे, मजा आ जाएगा। तो ये तो मैं थोड़ा बहुत खेलता रहता हूँ चैट जीपीटी के साथ, मजा आता है थोड़ा सा। यू गेट एक्साइटेड कि जब आपका जो प्रोडक्ट निकल के आता है और जब आप देखते हो तो थोड़ा सा, और ये सब देख के एक क्यूरियोसिटी भी जागती है कि और क्या कर सकता है ये, और क्या क्या। जस्ट अ very small view which we are talking about, right? There are millions of things which ChatGPT can do, right? If you talk about, as you rightly said, right, कि एक इंटर्न की तरह है जिसको सब कुछ पता है, बट फिर भी वैलिडेशन के लिए हमारे पास आता है। आना ही पड़ेगा ना उसको। वैलिडेशन के लिए हमारे पास आता है, राइट? यू कैन टॉक अबाउट कि मेरे को PhD करनी है, इट विल टेल यू कि PhD ऐसे करनी है, क्या क्या टॉपिक है, इट विल हेल्प यू एक्चुअली। एग्जाम्स पास कर सकता है वो। अगर आप उसको बोलोगे कि GMAT और ये सारे एग्जाम्स वो क्लियर, उसके रिकॉर्ड्स हैं, क्लियर करे हैं उसने एग्जाम्स, बिकॉज उसके पास वो है ना, वास्ट लेवल ऑफ नॉलेज ही तो चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली। और आज की तारीख में अगर आप यूज केसेस में जाओ तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। रियल एस्टेट कंपनी है, पोर्चुगीज रियल एस्टेट कंपनी, उसका नाम है पोर्टा दे फ्रंटे क्रिस्टीज। आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ, क्रिस्टीज बोलते हैं। क्रिस्टीज करके एक पोर्चुगीज कंपनी है। उसने एक AI का स्टार्टअप है इजराइल में, कॉल्ड eSelf AI। उससे उसने एक बॉट बनवाया, ठीक है, एक कस्टमाइज बॉट बनवाया, और उस पर्टिकुलर बॉट से उसने लीड्स जनरेट करवाई रियल एस्टेट की। जैसे एक प्रॉपर एक रियल एस्टेट का एजेंट बैठता और लीड जनरेट करता, वैसे वो उस एजेंट ने इंटरनेट या कॉल किया या क्या गया, थ्रू AI सर्च करके, अच्छा सर्च करके, लिस्टिंग्स को सर्च करके लीड जनरेट करी और उससे $100 million का सेल्स क्रिएट किया है। नो वे। यस, एंड दिस इज रियल न्यूज़। यस, $100 million का सेल्स इस पोर्चुगीज कंपनी ने AI एजेंट के थ्रू किया है। वाओ, दिस इज द न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ नाउ, एंड this is where I'm telling you how fast it is getting adopted, how fast it is outpacing everything, and how fast it is, learning. So that means sky is the limit, right? Yes. I mean, you just need to know कि किस चीज पे फोकस करना है, and then you can really make a lot of money. You can get a lot of knowledge.
Wow, that's quite impressive. Okay. Yeah. और ये एक पर्टिकुलर, ये तो बहुत न्यूज में आया था, तो ये हाईलाइट हो गया। बाकी ऐसे पता नहीं कितने होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एडॉप्शंस होंगे। मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ, लाइक तो LLM का बताता हूँ, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू यूज इन आवर कंपनी, वी आर नॉट सपोज टू यूज ChatGPT और Google Gemini, वी हैव क्रिएटेड आवर ओन LLM, ओके, स्मॉल लेवल, हमारी कंपनी ने खुद ही बना दिया, राइट। नाउ what we do, right? Now for an example, मैं real life example देता हूँ, ठीक है ना। तो what we did, we had a workshop, okay, where there were I think 30-40 people, and I was the one hosting that workshop, okay, with somebody else, okay, and then we were supposed to take feedbacks, you know, whiteboard पे हम लोग लिख रहे थे कि ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे हमको करना है, या फिर what is the action for future, right? And then in one of the exercises we did SWOT analysis, right? You know, तो अब होता क्या है workshops के अंदर, people write a lot, right? People are giving lot of feedbacks, right? There are a lot of sticky notes which is all over the wall. Now what happens at the end of the workshop, जो host होता है उसको जाके वो sticky notes collect करने होते हैं, then you need to categorize them in different buckets, right? SWOT analysis में लगा लिया, या फिर whatever feedback, right? Where are the opportunities? Where are the threats? Right? All of that. Now, for that, if you start doing it manually, it will take hours because you need to go through, you know, sticky notes by sticky notes. कि अच्छा ये तो threat है. You know, this is opportunity. What I did, very simple. I took a picture and I uploaded the picture in. No way. Yeah, I uploaded the picture and asked LLM to create categorize it and also summarize it. What exactly people want, and within few seconds. It gave me everything, right? The categorization. It gave me what exactly people are doing. It also gave me the ratio of people participated in different categories, right? So, I mean, for me, it was super easy. और ये मैनुअली करने बैठता तो कितना टाइम लगता था? Crazy, exactly. तो मुझे तो इतना amazing लगा ना, right? And then I told this to my boss, right? And my boss was of course surprised, like, how come you did it so quickly? मैं बोला टेक्नोलॉजी है ना हमारे पास, तो यूज करते हैं ना, उसका यूज करते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स इट गिव मी सम एरर्स, राइट, यू नो, नेम करेक्ट नहीं आया क्योंकि फोटो ब्लर होगी या कुछ होगा, बट दैट all of those things you can do, right? You know, if you are ready to spend 6 hours on something, you can spend 6 minutes. Why not, right? So I'm just sharing my experience कि LLM का क्या experience है, और आगे आने वाले टाइम में तो it's going to be doing wonders actually, because right now these are very small things we are talking, जो कि तेरी और मेरी लाइफ में चल रहा है, राइट? हमें तो मतलब scratching the surface, I think. Yeah, exactly. But there are other guys, those who are doing lot of things, right? Yeah. And people are literally creating and running a whole business just based on AI, you know, and then just वो लोग बहुत कुछ कर सकते हो आप। So अभी एक नई टर्म निकल के आई है, prompt engineering, ठीक है? Prompt engineering पे courses हैं Udemy पे और Coursera पे, we'll put some links and we'll talk about it later in the episode, but प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इसमें क्या है, बेसिकली एक कोर्स है छोटा सा जिसमें आपको एआई के प्रॉम्प्ट्स किस तरीके से देने हैं वो आपको सिखा रहे हैं, एंड आपको पता चलेगा कि आप बेसिकली एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट। आप अगर चैट जीपीटी पे कुछ पूछ रहे हो तो आप किस तरीके से आपने प्रॉम्प्ट दिया, उस बेसिस पे आपको आंसर मिलेगा। सो कैन वी कॉल इट आर्ट ऑफ आस्किंग? आर्ट ऑफ आस्किंग, या लाइक whatever जो इनपुट है वो आउटपुट है, राइट? यू नो, garbage in garbage out, right? So you have to ask the right question and you get the right answer, and you have such courses developed around it कि आपको ये भी सीखने के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि आपको पूछना कैसे है, यू नो, आज तक तो ये नहीं था ना अवेलेबल, और चैट जीपीटी किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो इसको एक थ्रेट ना समझ के, इसको अपना फ्रेंड समझ के, बिकॉज इट विल स्टिल नीड यू इन द एंड, यू नो, यू विल स्टिल, यू आर स्टिल रेलेवेंट। इफ अगर एआई आ रहा है और ये थ्रेट है कि जॉब्स चली जाएंगी एआई की वजह से, तो मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत सालों पहले जब कंप्यूटर्स आए थे नए नए ऑफिसेज में और बोला था कि ये जॉब खा जाएगा लोगों की, लेकिन एक रेवोल्यूशन आता है बहुत, हर आई थिंक कुछ सालों में, डेकेड्स में या फिर 20 साल में एक रेवोल्यूशन आता है। आईफोन को हम एक रेवोल्यूशन समझ सकते हैं, कंप्यूटर्स को समझ सकते हैं, कलर टेलीविजन को, रिमोट कंट्रोल, ऑल दीज थिंग्स, ये रेवोल्यूशंस हैं। तो एक टाइम पे आता है जब, और कंप्यूटर्स के टाइम पे स्पेशली आया था कि ये जॉब खा जाएगा, जो लोगों को मैनुअल वर्क करने की आदत थी उनको एक रेजिस्टेंस था कंप्यूटर्स को लेके, बट ऐसा नहीं हुआ है, नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं उल्टा, राइट? एक नया एरा क्रिएट हुआ, नई जॉब्स क्रिएट हुई, ऐसा ही एआई के साथ होने वाला है जो मैं परसीव और हो रहा है। एंड आई थिंक जो जॉब लॉस की बात है ना, जॉब जो है जिन लोगों की जा रही है, राइट नाउ, आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड इट लिटिल डिफरेंटली। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसकी वजह से जॉब जा रही है, जॉब नहीं जा रही है, इट इज मेकिंग योर लाइफ इजी, राइट?
Now, let me just quickly give one example, right? कि अगर हम लोग बैठ के कोई एक monotonous काम कर रहे हैं या repetitive काम कर रहे हैं, we'll talk about it in RP section, right? अगर हम कोई काम कर रहे हैं बैठ के, right, जिसके अंदर एक सिर्फ डेटा एंट्री है, right? वो क्या है? We are not using any brain, right? You know, we are picking information from one place to another place, and that's it. That's all we are doing, and we are sitting entire day doing that activity. Us human beings, we are capable of lot of things, right? Yeah, exactly. So हम अपना time waste उसमें क्यों करें? हम लोग data entry में time waste क्यों करें? Let's do something else about, you know, in the time which we can save, by utilizing RPA or AI. Absolutely. तो अभी यही है कि डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुक एट इट, राइट? जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी लोग वरिड थे, अभी AI आ गया, RPA आ गया, मशीन लर्निंग, देन ऑल्सो पीपल आर वरिड, बट एंड ऑफ द डे यही होने वाला है कि we'll see the benefits, and people are already seeing the benefits, like you and I see in our companies or in our day-to-day life. We are using a lot of these models, and we see there are a lot of benefits, right? Even to that level कि हमको personal level पे भी improve कर रहा है, right? Whenever we have any question, we do not wait. We're just simply going and asking questions. और मेरे ख्याल से की क्या है ना, कि ये है कि हमको अपस्किल करना पड़ेगा अपने आप को, चाहे आप किसी भी एज में हो, चाहे आप किसी भी जॉब में हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, आपको अपने आप को अपस्किल करना चाहिए और अपस्किल करना ही पड़ेगा. अगर आप लेफ्ट बिहाइंड, अगर आप अपस्किल नहीं कर रहे हो अपने आप को और इन टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, तो आपको फ्यूचर में इश्यूज आएंगे. बट अगर आप अपस्किल कर रहे हो और कुछ कोर्सेज को लेके छोटे मोटे अपना टाइम, स्पेशली मे बी आई डोंट थिंक, मे बी 1 घंटा या 2 घंटा भी दिन में निकाल के इसके बारे में, that is too much actually. We are talking about half an hour, 15 minutes if you do every day, right? You know, you go watch couple of videos on YouTube or Udemy, all of this. By the way, this episode is not sponsored by any of these, right? So हो सकता है शायद बाद में ये लोग देख के, लेकिन 10-15 minutes you spend and you can actually learn a lot, and this is how you and I have also learned, right? और हम लोगों ने एक दूसरे से कितना सीखा है, you know, और मैं जैसे कोई चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, यू गेट इंटरेस्टेड एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, और कुछ चीजें मुझे पता लगती हैं उस सर्च करके, बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू यू. ये बहुत होता है. आई एम श्योर यू नो इट हैपेंस विद यू एज वेल. आई मीन मेरा फर्स्ट जो रिएक्शन होता है ना कि इफ आई फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, तो मैं जाता हूँ प्रतीक के पास कि भाई तेरे को पता है क्या इसके बारे में? और प्रतीक का कभी ऐसा रिस्पॉन्स होता है, पता है यार मुझे, यार अभी कल ही देखा मैंने इसके बारे में, राइट? तो दैट इज समथिंग आई थिंक वी लाइक अबाउट ईच अदर, कि वी टॉक टू ईच अदर, वी फाइंड समथिंग न्यू एंड वी वांट टू एक्सप्लोर अबाउट दैट. लेट्स जस्ट मूव टू आरपीए, क्योंकि वी वर टॉकिंग अबाउट आरपीए, एंड अगर हम लोग को आरपीए को यूज में लाना है, तो कैन यू गाइड अस के आरपीए क्या चीज है, क्या होता है आरपीए से, और ऑटोमेशन एआई है क्या, यू नो? ये सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के. आरपीए एआई नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? यू नो, और यही रीजन है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज वी वांट टू क्लियर दैट मिथ, वी वांट टू क्लियर दोस डाउट्स कि आरपीए क्या है, राइट? और आरपीए बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, राइट, आरपीए व्हिच इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, राइट? एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है आरपीए के साथ, आई एम ए सर्टिफाइड RPA developer, right? And it's been a couple of years. I think past 3 years I've been working on RPAs, worked on many projects. And मेरा experience यही रहा है कि once you know about RPA, then all you're thinking about is RPA, because what it does to you, it actually increases your productivity by 10 times or 100 times. And I'll tell you why. Real life example देता हूँ, ठीक है ना? मेरी कंपनी के अंदर we were looking at inefficiencies. कहाँ हमारी inefficiencies आ रही है, where we can improve, right? And then we started looking into these repetitive work, right? And this is where RPA comes in place, right? So you have to remember कि एक ऐसा काम जो कि monotonous है, repetitive है, and very tedious है, and it's not creativity. It is just repetitive 1, 2, 3, 4 steps. This is what you're doing it, no matter what it is, right? Either you know, you're copying data from Excel to a site, or you are copying data from site to Excel, or vice versa, right? Now, what I did in my project, we had a couple of applications, okay? And we were supposed to copy the data, upload the invoices, etc., etc. And I learned about RPA. I said, let's try the bot, okay? These are not physical bots, by the way. These are... You created that? Yeah, I created that. You created that bot, wow, okay. So these are not physical robots, you know, these are the bots obviously in the system, right? These are bots in the system. And in simple language, if I have to say, it's going to record exactly what you do in your, you know, in your process.
It's gonna follow 1, 2, 3, 4, 5 steps, right? And it's gonna do the same job 10 times faster. Yeah. Okay. So for an example, if you want to upload an invoice or if you want to copy some information from your invoice and save it in your Excel, this is what your job requires. तो हम लोगों ने क्या किया, bot बनाया, right? It started copying, pasting the data. Now what it did, it is doing the job and it is freeing up space for my person, right? So productivity number one hai, right? And then it is also cost saving for me because I can utilize this guy somewhere else now. more creative जॉब नहीं जा रही है, जॉब नहीं जा रही है, एग्जैक्टली जॉब नहीं जा रही है, वो एक बेटर जॉब में अपने आप को यूटिलाइज कर पा रहा है और वैल्यू ऐड कर पा रहा है जो कि उसको भी बेटर है उसके लिए. एग्जैक्टली. एंड मोटिवेशन इज द थर्ड फैक्टर. मोनोटोनस जॉब है, हां, तो इट मोटिवेट्स पीपल बिकॉज़ नाउ पीपल आर बीइंग चैलेंज्ड फॉर समथिंग व्हिच दे वर नॉट डूइंग, राइट? So this is what I'm just sharing. And बहुत बढ़िया if you created that bot yourself. तो बेसिकली मैक्रो टाइप है. अगर ऑडियंस को थोड़ा सा मैक्रो के बारे में, एक्सेल में एक मैक्रो होता है, आप रिकॉर्ड करो एक प्रोसेस को और उसको फिर प्ले कर दो तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, इजी है. और वो सेम चीज देश हैज रेप्लिकेटेड इन अ जनरल एनवायरनमेंट यूजिंग UiPath. Exactly. Yeah, UiPath. There are many applications. UiPath. You have Anywhere Automation, and then the other one which you were talking about. I was talking about Microsoft का Power Automate है, and then Selenium use करके. So same experience I also had. We were struggling with the same scenario. एक बहुत ही monotonous job थी. एक particular हर सप्लायर को एक कस्टमर के पोर्टल में जाके इनवॉइसेस अपलोड करनी होती है और वो इनवॉइस पहले पीओ के साथ मैच करनी होती है एंड देन इट गेट्स अपलोडेड. क्योंकि कस्टमर भी है, वो अपना कॉस्ट बचा रहा है. उसने जो अकाउंट्स पेबल का एक बंदा था जो इनवॉइसेस अपलोड करता था, उसको पूरी टीम को हटा के उसने एक पोर्टल क्रिएट करवा दिया जिसमें सप्लायर को बोला अगर आपको मुझे सप्लाई करना है, जो बिग कंपनीज है कर सकती हैं, दे हैव द पावर टू डू दैट. तो अगर आपको मेरे को सप्लाई करना है तो इस पर्टिकुलर पोर्टल पे आके आपका एक यूजर आईडी पासवर्ड बन जाएगा और आप अपने इनवॉइसेस को यहाँ पे पीओ के साथ, वहाँ पीओ ऑलरेडी अपलोडेड होगा जो जीआरएन के साथ मैच्ड होगा और पीओ के साथ आपको इनवॉइस मैच करनी है, राइट? तो आपको अपनी इनवॉइस जो है यहाँ अपलोड करनी है, तब जाके वो पेमेंट ड्यू डेट पे पे होगी, प्रोसेस होगी. हाँ, तो ये एक प्रोसेस था जो कि एक्चुअली बहुत मोनोटोनस. अगर आप वॉल्यूम में सप्लाई कर रहे हो तो आप इमेजिन करो आपकी दिन में 100 इनवॉइसेस हैं, ठीक है, महीने की 3000 इनवॉइस हो गई, राइट? तो ये 3000 इनवॉइस अगर आपको सप्लाई करनी है और ये आपको अपलोड करनी है तो ये एक टास्क है. एक बंदा बैठ के लिटरली 8 घंटे यही कर रहा है, ठीक है. और ये हमने फिर एक कंपनी को कांटेक्ट किया. मैंने तो नहीं बनाया बॉट क्योंकि मैं इतना नहीं हूँ, बट आई कॉन्टैक्टेड अ कंपनी विच वाज डूइंग दिस. तो दे यूज्ड Selenium and they created a bot similar to this which had a lot of complexity because उसमें जाके यूजर आईडी पासवर्ड, तो लिटरली व्हेन यू सी दिस बॉट इन एक्शन आपको मजा आ जाता है. तो आप लिटरली एक प्ले का बटन प्ले करते हो और आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होता है, वो जाता है, यूजर आईडी पासवर्ड जाता है, इनवॉइस निकालता है, इनवॉइस सेव करता है एक फोल्डर में, फिर जाता है, उसके बाद पीओ सेलेक्ट करता है, इनवॉइस अपलोड करता है और सबमिट करता है, जो एक बंदा बैठ के कर रहा था ये पहले. और वो 8 घंटे में मैक्सिमम 60 इनवॉइस 50-60 इनवॉइस अपलोड कर पाता होगा एक दिन में मैक्स. आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्स. और ये बॉट 800 से 1000 इनवॉइस अपलोड करता था एक दिन के अंदर. सो यू कैन इमेजिन प्रोडक्टिविटी कहाँ पहुंच चुकी है. अगर आपको एक अपील लेटर लिखना है जिसमें आपका इंश्योरेंस क्लेम डिनाई हो गया है तो आप ChatGPT से लिखवा सकते हो. क्या आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या लिखना है, आप बस उसमें लिखो मेरा इतना इंश्योरेंस क्लेम था, ये था, रिजेक्ट हो गया, कैन यू प्लीज राइट एन अपील. वो पूरा एक लेटर ड्राफ्ट कर देगा. बचपन में याद है हम वो लेटर्स लिखवाते थे स्कूल में कि एक लेटर लिखो, याद है कि आपकी ये सब आपका छुट्टी मांगने के लिए ये लेटर लिखो. वो लोग अब कोई जरूरत ही नहीं है शायद वो सीखने की. ChatGPT सिखा सकता है. I think it was also one of the topics, right? एग्जाम में भी आता था कि एप्लीकेशन लिखो, राइट? एप्लीकेशन लिखो, आपको अप्लाई करना है जो उसके लिए एंड ऑल दैट. तो आरपीए का अगर मैं एग्जांपल दूं, वेरी सिंपल, जो मैं पहले भी बता रहा था, इट इज बेसिकली डूइंग अ रेपिटेटिव टास्क, राइट? So if you get an email, you want to download a PDF from that email or get some information from email, that is exactly what RPA can do for you, and you don't need to do it yourself. The RPA does it for you. इनवॉइसेस और SOAs भेजनी है आपको अपने कस्टमर्स को, डायरेक्टली आप RPA के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हो. पूरा का पूरा प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हो. बहुत ही मजेदार चीज है. और वहीं अगर हम एक ML की अब बात करें, ML क्या है? मशीन लर्निंग, राइट? तो ML क्या है, ChatGPT क्या है, ये ML के ऊपर बना हुआ है. सो ML के बिना AI कुछ नहीं है. मशीन लर्निंग है ना, लर्न कर रहा है. तो इट्स बिल्ट ऑन ML बट इट्स स्पेशलाइज्ड इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP. तो वो NLP के साथ स्पेशलाइज्ड है. और अब तो बहुत ही एडवांस्ड बॉट्स आ रहे हैं धीरे धीरे जो हम लोग देख रहे हैं. ChatGPT तो एक है जो हम लोग सालों से अभी यूज कर रहे हैं,
बट डीप सीक आ गया है और मानुस एआई चाइना ने निकाल दिया, जो कि नेक्स्ट लेवल अमेजिंग है भाई। उस पर तो आज हम बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो एक बहुत ही मतलब माइंड ब्लोइंग टॉपिक है मानुस एआई, तो वो हम लोग एक दिन कवर करेंगे। वो बहुत अमेजिंग है। यू हैव सीन मानुस एआई? No, I have not. Really? I have not. नहीं man. यार। Seriously, Are you मैंने नहीं देखा। serious? That's why I'm stunned. I don't know. मानुस एआई यू नॉट सीन? नहीं नहीं नहीं। ग्रॉक एआई, यू नो एलॉन मस्क का जो ग्रॉक एआई, वो मैंने ग्रॉक देखा। एआई जो आया, जो उसका तो न्यूज़ भी आया था कि हाँ, now in हिंदी गालियां दे रहा है exactly, लिटरली वो मैंने देखा था सबको। सो exactly, बेसिकली ग्रॉक एआई का भी एक मस्त एग्जांपल है, जो ट्विटर पे आप लिखो ग्रॉक एआई तो आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो इंडिया में लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया उसको और उसने सीख के वापस फेंक दिया भाई। तो वो बहुत सारी अभद्र भाषा यूज कर रहा है तो ग्रॉक तो एनीवेज, बट मानुस एआई भाई मेरे को लगा तेरे को पता होगा मानुस। that is the topic for our next हाँ, episode. बट वो अमेजिंग है भाई, वो नेक्स्ट लेवल चला गया है, नेक्स्ट लेवल चला गया है मानुस एआई। तो मैं हम लोग करेंगे उसके बारे में बात पहले, ठीक है? वो एक एग्जांपल है हमारा, बहुत ही है। मैं आई थिंक आप लोगों के साथ शायद हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो आप जब अपना कार्ड यूज करते हो राइट, तो आप अपना कार्ड जिस तरीके से यूज कर रहे हो वो डेटा जो है आपका बैंक उसका एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है राइट। आपका एक पैटर्न है, हिस्ट्री बिल्ड हो रही है, एक पैटर्न है। आप अपना, अगर हम लोग दुबई में रहते हैं तो हम लोग दुबई में अपना कार्ड यूज करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। और मैं अगर कहीं पे भी ट्रैवल करता हूँ तो वहां पे कर लेता हूँ। इंडिया में अगर ट्रैवल किया मैंने, अगर कोई यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करती है तो वहां मैंने यूज किया होगा मैक्सिमम। अब क्या हुआ, अब मैं सीएमए यूएस हूँ राइट, सीएमए यूएस की मेंबरशिप फीस होती है अच्छा ईयरली राइट। तो जब मैंने ये कार्ड पहली बार उस मेंबरशिप पे पुराना यूज करता था, तो जब मैंने ये वाला कार्ड अपना मेंबरशिप फीस पे करने के लिए यूज किया, तो मेरे बैंक से मुझे 2 मिनट के बाद कॉल आ गई कि सर आपका फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, आपका कार्ड कोई यूज कर रहा है यूएस में। अच्छा। तो अब ह्यूमनली तो ये किसी के लिए पॉसिबल है नहीं कि वो बैठ के सारे ट्रांजैक्शन देख रहा हो, ट्रांजैक्शंस। हाँ, तो यहाँ पे ये एमएल यूज हो रहा है, जो कि उन्होंने पूरे ट्रांजैक्शंस को रीड किया और एक अचानक से एक एनॉमली आई, ठीक है? एक एनॉमली है ना एग्जैक्टली। और ये आई कि भाई ये यूएस तो गया नहीं है भाई कभी, तो इसने कहा और ये क्या खरीद रहा है यूएस में ऑनलाइन भी, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जो होते हैं तो वो यूएस में यूज करते हैं कार्ड। अगर किसी का डेटा ब्रीच हो जाता है तो वो यूएस में यूज होते हैं या कई ऐसी कंट्रीज में होते हैं यूज ऑनलाइन डेटा। तो अब वो कार्ड मेरा यूएस में यूज हुआ, वो पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन भी बड़ी थी, डॉलर्स के लिए यूज हुआ। तो कॉल आ गया, तो उन्होंने, जब तक मैंने वो ऑथराइज नहीं किया कि भाई मैं ही हूँ, विश्वास करो मुझ पे मैंने यूज किया है, तो जाके वो उन्होंने ऑथराइज करी एंड दैट्स व्हेन इट वेंट थ्रू। अदरवाइज दे हैड ब्लॉक्ड इट एंड दैट्स आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट कॉल, ऑफ कोर्स। कि ऐसा तो अगर है तो फ्रॉड बच सकता है, फ्रॉड होने से बच सकता है इस तरीके से, जिन लोगों का एक्चुअल हुआ होगा। एग्जैक्टली। Yeah, fantastic. I mean, that's really nice actually. मानने को तैयार नहीं हो रहे थे भाई 2 मिनट के लिए, तो वो लोग क्या तो हाँ, तो चैट जीपीटी और एआई में आप बेसिकली यही सारी चीजें जो है इनपुट जा रहे हैं और ये लर्न कर रहा है और एक ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर रहा है, जो कि हमारे दैट्स व्हाई इट्स सो पॉपुलर एंड सो फेमस। अगर एमएल के हम लोग डेटा को दिखाने लग जाए तो लोग समझ नहीं पाएंगे उस चीज को। और जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, अगर एक कस्टमर्स के चर्न को प्रिडिक्ट करना है तो एमएल वो कस्टमर्स के चर्न को हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकता है राइट। उसको वो देखेगा कि हिस्टोरिकली इतना चर्न हो रहा है, चर्न मतलब इतने कस्टमर्स नए आ रहे हैं, इतने कस्टमर्स जा रहे हैं, तो वो एमएल अगर उसमें अप्लाई करेंगे तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है उसको। लेकिन एआई वही डेटा को यूज करके आपको अपना प्रॉपर आपकी लैंग्वेज में समझा सकता है कि ये क्यों हो रहा है, ये इस तरीके से बचाया जा सकता है और आपको आगे एडवाइसेस भी दे सकता है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक हमने काफी कुछ कवर कर लिया आज। एग्जैक्टली। बहुत मजाक में और अच्छे टॉपिक्स भी कवर हो गए हैं, डाउट्स क्लियर हो गए हैं राइट। एंड देन AI RPA, आई होप कि व्यूअर्स को क्लियर हो गया हो कि क्या डिफरेंस होता है। एंड इफ समबडी इज कमिंग टू यू एंड टेलिंग यू कि हम लोग बॉट्स बना देंगे और उसके अंदर AI डाल देंगे, यू गाइज नो कि क्या डिफरेंस है, राइट? तो आई थिंक आई एम सुपर हैप्पी विद व्हाट वी डिड टुडे, बट let's do one thing, let's give little bit more, right? I think viewers will also be interested कि अगर उनको लर्न करना है, उनको सीखना है इनके बारे में, तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे वो, राइट? तो maybe you can tell about that course you did, the UI path. So I did UPA का RPA developers. What is it? What it stands for? RPA is for robotic process. UPA, what is the UPA? UI path. UI path is the company name, right? Which provides you these different certifications, right? And जो program मैंने किया था, that was robotic
process automation citizen developer program. Very good. Very Okay. basic training है. It tells you or it teaches you कि आप bots कैसे बना सकते हो, right? Basic वाले bots, right? I'm not talking about very high-fi. Basic वाले bot की इधर से जाके डाउनलोड करो और लॉग इन करो. All of that you can learn through. कितना टाइम लगा वो कोर्स करने में? Not so much actually, you know. I did it in couple of days. In fact, if you sit one day and decide कि भाई आज ही मुझे finish करना है, you can do it. Maybe you know couple of hours. I don't remember exactly how many number of hours, but you have these different chapters, right? कि अभी इस chapter में ये करेंगे, next वाले में ये करेंगे. So I did all of that. And then I managed to do it. और अगर आप मतलब 4-5 घंटे लगा रहे हो तो आप 5 दिन में कोर्स I think yeah, you can do it. I can drop a हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. और exactly. कुछ फीस वगैरह उस कोर्स की कितनी? फीस तो है, उसकी फीस है, but how I did it is I did it through my company. So my company was लेकिन अगर किसी को पे करनी हो we'll check and we'll let people know. We'll put that. तो ये एक पेड कोर्स है, but it's very useful. I think आप अगर करोगे और इसमें आप अगर मेरे ख्याल से फाइवर पे और अपवर्क में अपने आप को यूज कर लेते हो ये कोर्स करने के बाद, तो आप उतना तो you might be able to make it back, right? Exactly, yeah. तो फाइवर और अपवर्क के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं बाद में, लेकिन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो. Exactly. मजेदार चीज है. I did it actually. Fiverr से मैंने क्या किया था, I hired a singer, okay, for my friend's birthday, okay, and we surprised my friend. गाना बनाया उसके लिए, और इट वाज अमेजिंग. चैट जीपीटी पे बनाया? नहीं, गाना मैंने चैट जीपीटी पे बनाया था और गवाया मैंने उससे फाइवर के थ्रू, एंड इट केम आउट टू बी फैंटास्टिक एक्चुअली. वी लव्ड इट. बताओ यार, और क्या चाहिए अभी? तो मतलब क्या क्या हो सकता है? तो मैं 2 कोर्सेज के बारे में आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही बेसिक है. एक यूडेमी पे एक कोर्स है, चैट जीपीटी फॉर बिगिनर्स. आपकी प्रोडक्टिविटी, प्रॉम्प्ट बेसिक्स को एनहांस कर सकता है. कभी किसी ने अगर नहीं यूज किया है उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत छोटा मोटा सा कोर्स है, आप कर सकते हो इजीली. और लिंक्डइन लर्निंग पे आप चैट जीपीटी इन एवरीडे लाइफ ये कोर्स कर सकते हो. आई नो फॉर सम ऑफ यू व्यूअर्स, कुछ आप लोगों में से एक्सपर्ट भी होंगे और जो ये सोच रहे होंगे क्या यार ये लोग है ना बेसिक बातें कर रहे हैं, बट ये बहुत सारे लोगों के लिए बेसिक नहीं है, राइट? उनको लगता है कि अरे क्या चीज है, राइट? तो इफ यू फाइंड इट वेरी बेसिक, नो प्रॉब्लम, यू नो, कम एंड probably help us, and we would love to learn from you guys. But this is for many other people, those who are willing to learn, change their life and do a lot of different things, right? और मजा आया यार आज बात करने में, काफी मजा आया, बहुत मजा आया, and I think we should continue doing that. I just love. So with that, I think this is it for today, and then we will meet everybody in the next episode where we will be talking about different things. Of course, Pratik has a lot of experience, different things he has done in life, so we'll pick something from his experience. मैं अपनी लाइफ में से कुछ शेयर करूंगा. I have been moving and moved to and lived in different countries, so I will share with you कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस था. So there is a lot to come in. मनी ऑर्डर वाली बात तो बतानी. मनी ऑर्डर वाली जहाँ पे इंडिया में यूपीआई चल रहा है, लैंडलॉर्ड ने तेरे से मनी ऑर्डर मांग लिया, and that was next level यार. मतलब 2024 में I called my dad actually. I said कि मैं US में हूँ and these guys are asking for money order, and my dad was like, I stopped using money order many years back. What are you guys talking about? But anyway, that's for the next one. बट आप लोग हमको प्लीज कमेंट्स में लिखिए कि आपको कैसा लगा. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हमारा पहला एपिसोड है. प्लीज सपोर्ट अस, और प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट्स इफ यू वांट अस टू ब्रिंग अ गेस्ट हु हैज लेट्स से अ डीप नॉलेज ऑफ एआई. किसी को आपको चाहिए कि हम किसी गेस्ट को लेके आए, उससे हम लोग दोनों मिलके कॉन्वर्जेशन करें और आप लोगों तक पहुंचाएं. तो प्लीज लेट अस नो, प्लीज जेनरसली लेट अस नो कि कैसा लगा आपको और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं टू ब्रिंग यू द बेस्ट कंटेंट in the next episode. Yeah. So with that, thank you so much. Thank you guys. And we'll see you next time. Yeah. Thank you.